Good afternoon, everybody. Am I audible? Final? Yes, sir. Audible. Okay. देवेंद्र भाई अभी क्या से? Yes, Yes, yes. देवेंद्र भाई welcome. Thank you very much. Welcome, welcome. Uh, Let me share a very auspicious event with all you all. 25 July 2009, Charuset was notified as a university. So this is a very auspicious week that we are having luminary like Devendra Patel with us, and that too for addressing a wonderful topic for motivating the youths. We all know that any writer, or for that matter, a thinker or writer or a philosopher, they are the people who mold the society. They are the people who give direction to the society. They are the people who have changed the courses of the history. If we see the history of the world, if we see the history of our nation, or if we see even the history of our state, the writers have been the big contributors on shaping in our conscious mind, our collective minds. I will like to quote example of Mahatma Gandhi. Though he led a national movement, maybe Dani March or maybe non-cooperative movements or many other public events, he ensured that he prolifically wrote on national issues through uh, magazine Harijan. We will be surprised to know that he used to receive hundreds of letters every day, and no letter went unanswered by Mahatma Gandhi. So nationwide, all the leaders have used the writing as a medium for maybe communicating their thoughts, maybe motivating the people. Even we take example of Narendra Bhai Modi or maybe Sardar Vallabhbhai Patel, maybe Jawaharlal Nehru. Even Bajpayee ji used to write poems. But these all people knew how the power of writing, the power of the philosophers. For some youths who have logged in, I will give you example of recent movie Padmavati, Rani Padmavati. We all know that what that literary piece, I mean any write-up or any movie or any poem. So what that literary piece created in the society, it created a very big disturbance in the society. If we go in the generation like mine, where we had a movie called Andhi, Kadach Devendra Bhai Vadar Vaat Karse, but the movie was based on the life of Indira Gandhi, and it created such a big flutter across the nation that ultimately the movie was banned. If we talk about the books, we know the book of Taslima Nasreen, or we know the book of Salman Rushdie, which created turbulence in nation as well as if we talk of Salman Rushdie across the world. So my point is that the writers have power to shape the society. The writers are the conscious mind of the society. Uh, and the writers, they shape the young minds. So we have a very prolific writer with us today. If I give example of a writer of ancient Gujarat, I very well remember Akho, who was a Soni, and in his days he said, "एक मूर्ख ने एवी टेव पत्थर इटला पूजे दे." So you used to attack the social evils. So I believe that a writer has to have a sensitive heart who looks at the phenomenon of the society, who can capture what is going on in the society and reflect upon that. A writer has to have a very good articulation skills. He or she puts his thoughts, वो अपने विचार को शब्दों में ढाल सकता है. And the last and the very important, which I think is the courage to put across his or her thoughts. And in that courage meter, I think Devendra Bhai Patel is very high on that. Wherever he has written, whatever he has written, he has been always forthcoming and straight without mincing his words. He has been awarded with Padma Shri by Government of India. To his credit, he has more than 40 books and innumerable articles.
We know Devendra Bhai Patel through his regular column Kabhi Kabhi, where he has been touching upon many socially sensitive issues. Acquaintances and known people of Devendra Bhai who are also our well-wishers, Sri Dinsa Patel Sahib, a statesman from Gujarat, and Ghanshyam Bhai Patel, they had been very kind in supporting Charu Sahib, Devendra Bhai, and so I extend this gratitude to them also. Once again, I welcome Sri Devendra Bhai Patel for this wonderful webinar. And I'm very sure that young people and everybody who has logged in will be enjoying the thoughts, the motivation which we get from Sri Devendra Bhai Patel. Patel Sahib, I welcome you to take over, please. Thank you very much. Thank you very much, Devang Bhai. In fact, this is my second visit to your institution. सबसे पहले मैं सुरेंद्र काका के साथ 4 से 5 साल पहले I came to your university. I met number of people and students and the professors as well. And this is my another visit. लेकिन ये अप्रत्यक्ष है. We are meeting on screens because of the corona pandemic. I am really happy that you quoted 2 important names, Surendra Kaka and Dinsha Patel Sahib. Dinsha, I have been in touch with Dinsha Patel since last 40 years, and Surendra Kaka as well for last 40 years. Particularly Dhaval from your department, who is a coordinator of this program. We met at Dinsha Patel's place, और दिनशा पटेल के घर पे हम मिले थे. घनश्याम भाई पटेल भी उनके साथ थे, और उनके साथ परिचय के बाद मुझे कुछ दिनों पहले धवल भाई का फ़ोन आया और घनश्याम भाई का फ़ोन आया कि देवेंद्र भाई आपको इस यूनिवर्सिटी में आना है. तो जैसे मैंने चारूसेट यूनिवर्सिटी का नाम सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इस संस्था के साथ मेरा अप्रत्यक्ष बहुत अच्छे रिलेशन रहे, पर्टिकुलरली सुरेंद्र काका की वजह से. और सबसे पहले मैं जब 4 या 5 साल पहले ऐसे कोई कार्यक्रम में मैं तो सिर्फ एक गेस्ट आया था, मेरा कोई लेक्चर वगैरह नहीं था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द इंस्टीट्यूशन. और आपने जो बताया कि भाई ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है, राइटर्स को आप बुला के लाए हो. सर, हमारे प्रॉब्लम यह है कि राइटर्स कैन क्रिएट आइडियोलॉजी, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियन हम नहीं बन सकते हैं. वी कैन नॉट बिकम गुड पॉलिटिशियन. You quoted the name of Mahatma Gandhi, and you quoted that he used to write so many letters, and Sardar Patel, etc. मैं आपको इस विषय में, आज हमारे स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे आई वुड लाइक टू रिफर 2 बुक्स. हम सब लोग जानते हैं कि बहुत साल पहले गांधी जी इंडिया में या गुजरात में आए, उसके पहले वो साउथ अफ्रीका में गए थे एक वकालत करने के लिए. तो वहाँ पर तो वो एक वकालत करने के लिए गए थे, और जैसे वो एक कोर्ट में एंटर हुए तो वो इंग्लिश जज ने बोला कि अपनी पगड़ी नीचे उतार दो. तो गांधी जी ने बोला कि मैं अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा, मैं बाहर जाना पसंद करूंगा, लेकिन आई विल नॉट, मेरा टर्बन वो वहीं रहेगा. और दूसरे दिन अनवेलकम विजिटर के नाम से अखबारों में बहुत सारी उसके सामने डिस्कशन हुई. तो गांधी जी को सबसे पहले पता चला कि ये दक्षिण अफ्रीका में, जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वहां पर इंडियंस के साथ या कलर्ड पीपल के साथ बहुत सारा इनजस्टिस हो रहा है. एक दफे वो डरबन, जोहानिसबर्ग से डरबन जा रहे थे रात को, और उनका एक अंग्रेज मित्र जिसका नाम था पोलेक, तो अंग्रेज मित्र ने कहा कि ये 24 घंटे की एक आपकी जर्नी है, तो आई एम जस्ट गिविंग अ बुक, और ये बुक आप पढ़िए, और आई होप कि दिस बुक विल हेल्प यू लॉट. तो बुक का नाम था अनटू दिस लास्ट. अनटू द लास्ट नहीं, अनटू दिस लास्ट. इट वाज रिटन बाय जॉन रस्किन, हु वाज एन इंग्लिश ऑथर. तो गांधी जी अपने आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि मैं जैसे एक किताब पढ़ता गया, सुबह तक मैं किताब पढ़ता रहा. फिर मुझे लगा कि ये बुक मेरे जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी. आपको ये बड़ी आश्चर्य की बात लगेगी कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी
एक नई जो कंजर्वेटिव की पार्टी के साथ नई पार्टी खड़ी हुई, वो लेबर पार्टी के मेंबर्स को पूछा गया कि भाई आप लेबर पार्टी क्यों ज्वाइन किया, तो उसमें से 2/3 पीपल, 2/3 लोगों ने, मेंबर्स ने कहा कि हमने अनटू दिस लास्ट पढ़ा था। अनटू दिस लास्ट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मूढ़ीपति थे, उनके बारे में लिखा था कि ये कैसे लोग गरीब और लोगों का शोषण करते हैं। गांधी जी ने ये बुक पढ़ा। ये बुक पढ़ने के बाद गांधी जी ने अंत्योदय और सर्वोदय शब्द हमारे यहाँ पर लाए और नमक का सत्याग्रह किया। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि नमक, ये व्हाट इज सॉल्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में हम क्या करेंगे। तो गांधी जी ने बताया कि सॉल्ट एक ऐसी चीज है कि एक गरीब लोग या सबसे बड़ा पैसा वाला, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक अनटू दिस लास्ट की वजह से, एक बुक की वजह से इंग्लैंड में, ब्रिटेन में लेबर पार्टी खड़ी हुई। और दूसरी एक बुक, इंपॉर्टेंट बुक थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी, दास कैपिटल। दास कैपिटल की वजह से साम्यवाद पैदा हुआ। हम साम्यवाद से सहमत हो या ना हो अलग बात है, वी आर नॉट कम्युनिस्ट पीपल, वी आर डेमोक्रेटिक पीपल। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बुक, एक आइडियोलॉजी बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर सकती है। ये दिस इज अ पावर ऑफ अ बुक। और ये बुक का मैंने इसलिए कहा कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो आज पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त है, लोग बीमार है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। और हम 98% ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे विश्व के आज अपने स्कूल में नहीं जा रहे। वो या तो अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर वो एजुकेशन ले रहे हैं। हमारी सवाल है कि मोबाइल और लैपटॉप पे आप लेक्चर सुन सकते हो, लेकिन वहाँ लाइब्रेरी कहाँ है, वहाँ लेबोरेटरी कहाँ है, विनय और विवेक कहाँ है, वहाँ पर प्लेग्राउंड्स कहाँ है, वहाँ पर खेल कूद और तूफान मस्ती कहाँ है। वो सब हम आज मिस कर रहे हैं। इस एटमॉस्फेयर में हम स्क्रीन टू स्क्रीन हम आपके सामने मिल रहे हैं। तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स आज सुन रहे हैं, उनको एक चीज का अभी पता होना चाहिए कि अभी इस हमारी पूरी दुनिया चांद तक पहुंच गई, मंगल तक पहुंच गई। दुनिया भर में सिर्फ अमेरिका के पास इस पृथ्वी का 300 बार नाश विनाश कर सके उतनी न्यूक्लियर मिसाइल्स है। लेकिन हमारे पास बॉडी में घुसा हुआ एक कोरोना कोविड-19 वायरस को मारने की आज भी एक भी न तो दवा है न वैक्सीनेशन है। हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारी संस्था में पढ़ रहे हैं, मैं उनको चाहूंगा कि आप एक बात हमेशा अपना ख्याल रखिए कि आने वाले समय में हमें मिलिट्री से ज्यादा ऐसे लोग चाहिए कि जो आने वाली दुनिया को एक अच्छी दुनिया, बच्चों के लिए अच्छी दुनिया दे, बच्चों के लिए अच्छा टीचर्स दे, बच्चों के लिए अच्छे पॉलिटिशियन दे, बच्चों को अच्छा डॉक्टर्स दे। हमको जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की जरूरत, जैसे कि पेंटागन अमेरिका का, उससे ज्यादा अमेरिका को हॉस्पिटल्स की जरूरत है, अमेरिका को अच्छी नर्सेस की जरूरत है। आज भी हम अगर कल का फिगर देखें, 70,000 पीपल डाइड इन यूएसए ओनली इन 24 आवर्स। तो अमेरिका को क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये चीज हमको देखनी होगी। आज अभी मैं मेन सब्जेक्ट पे बात आता हूँ दयान साहब, कि स्कूल से आज हमारे पास, जैसे कि आपकी चारों साइड जैसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटीज है। वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, दुनिया भर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। लेकिन मैं एक छोटे से बच्चे की बात करना चाहता हूँ कि जिसका नाम था 1847 की ये बात है। देयर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम अमेरिका, आई तो डोंट नो, वहां पर ओहायो में एक प्लेस है मिलान। मिलान में एक छोटा सा एरिया था उस जमाने में। आई एम टॉकिंग अबाउट 1847। 1847 में एक छोटे से कस्बे की एक छोटी सी स्कूल थी। इसमें एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था थॉमस, वो स्कूल में पढ़ रहा था। तो एक दिन उसके टीचर ने कहा कि देखो थॉमस, तुम घर पे जाओ, तुमको मैं आपको एक कवर देता हूँ, ये कवर खोलना नहीं, इसमें मैंने एक लेटर लिखा है जो आपको पढ़ना नहीं है, जो आपको अपनी माँ को देना है। थॉमस गया, क्योंकि वो तो ही वॉज अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट, एकदम यंग था, छोटा सा बच्चा था। घर पे जाके उसने ये लेटर अपनी माँ को दिया। माँ ने इस लेटर को खोला, पढ़ा, देख के उसने वो बाजू में रख दिया। तो बच्चे ने पूछा कि मॉम, मेरे टीचर ने क्या लिखा है इसमें। तो मम्मी ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, इसमें लिखा है कि योर सन इज सो
योर सन इज सो ब्राइट, वो इतना क्लेवर और होशियार है कि उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास कॉम्पिटेंट टीचर्स नहीं है, तो बेहतर यह है कि वो उसको आप अपने घर में ही पढ़ाओ। तो माँ ने फिर उसको बच्चे को अपने घर में पढ़ाना शुरू किया। जैसी भी माँ भी होशियार थी, शी वॉज वेरी क्लेवर, और वो एक एकेडमिक नेचर की थी, तो माँ ने अपने बेटे को घर में पढ़ाया, फिर बाहर पढ़ाया। एक दिन यही बच्चा थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अभी आई थिंक सब लोग जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने सबसे ज्यादा साइंस के इन्वेंशन किए, बिजली का बल्ब उन्होंने खोज निकाला, फोनोग्राफ एंड टेलीग्राफ, ये तो मतलब कि ये सब खोज निकालने वाले थॉमस अल्वा एडिसन थे। वो दुनिया भर में वो मशहूर हो गए। मशहूर होने के बाद फिर अपने गांव वाले गांव घर में वापस आए। फिर उनको उस समय में उसकी माँ का देहांत हो गया था, तो उनको पुरानी यादें ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी माँ का अपना जो कबोर्ड था वो कबोर्ड खोला। ही ओपन दैट कबोर्ड, यानी उसमें वो पुराना वाला वो टीचर के दिया हुआ एक कवर पड़ा था, जो वो जब छोटे थे, जब उसके टीचर ने दिया था उसकी माँ को देने के लिए। वो कवर खोल के उसने देखा तो उसमें जो टीचर ने लिखा था, क्या लिखा था कि मैडम आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, वो मंद बुद्धि का है, और उसको आप अपने घर पे रखिए, हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं, वी आर रस्टिकेटिंग हिम, हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं, आपका बच्चे की हमारे स्कूल को जरूरत नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन की आंख में आंसू आ गए। मैं इतना मेंटली रिटार्डेड था और मुझे मेरी माँ ने बताया भी नहीं। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आई वॉज अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, लेकिन माई मॉम ट्रांसफॉर्ड मी इनटू अ जीनियस पर्सन। तो एक माँ में ये ताकत है कि आज हम स्कूल में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चों में से कोई अगर मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली चैलेंज्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता। जैसे कि रैबिस, कुत्ते काटने से जो रैबिस होती है, उसको ढूंढने वाला भी वही थे, वो भी एक अनदर साइंटिस्ट था, वो भी मेंटल रिटार्डेड था। मैडम क्यूरी, जिन्होंने रेडियम को ढूंढ निकाला और रेडियम की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आज कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो परिस्थिति है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में, ये जरूरी नहीं है कि आपने एक एग्जामिनेशन दी और 100 में से 90%, 95, 98, 99% आए, वो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़े इन्वेंशन करने वाले कभी 99% या 90 या 100% नहीं लाए हैं। गांधी जी सिर्फ 40% मार्क एसएससी में, मतलब कि उस जमाने में मैट्रिक कही जाती थी, सिर्फ 40% मार्क लाए थे और महात्मा बन गए। आइंस्टाइन को जर्मनी की म्यूनिक की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं मिला था। उनको बोला था कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के लायक नहीं हो, यू आर नॉट फिट फॉर यूनिवर्सिटी एंड वी आर नॉट गिविंग यू द एडमिशन। ही वाज डिनाइड, और वो दुनिया का सबसे बड़ा, पिछली सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। E = mc² थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने ढूंढ निकाली। और वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी सब तो जानते हैं कि एक परमाणु को जितना भी आप तोड़ते जाओ सबसे बड़ी ऊर्जा पैदा करता है। और वही थियरी के आधार पर न्यूक्लियर बॉम्ब बना। न्यूक्लियर बॉम्ब आइंस्टाइन ने नहीं बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब तो उनकी थियरी का इस्तेमाल करके ओपेनहाइमर, हु वाज अ साइंटिस्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने बनाया। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट को सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, वो भी जर्मनी की, उन्होंने बता दिया था कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी के आप लायक नहीं हो। आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर, फिल्मों के गुलजार का नाम सबने सुना है, गुलजार को उर्दू में नापास कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन को सबसे पहला उनका शूट हुआ तो उनके आवाज के लिए उनको निकाल दिया गया था। आज अमिताभ बच्चन का आवाज का जादू सभी जगह पर है। ऐसा एक छोटे से बच्चे की और बात करता हूं मैं। एक छोटा सा, बहुत साल पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ साल पहले की बात है। तो एक छोटा सा बच्चा वो लंदन की स्कूल में पढ़ता था और ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज।
तो उनके टीचर ने बोला कि यू आर स्टूपिड एंड यू आर नॉट फिट फॉर द स्कूल, तो बेटे जो गेट आउट। उसकी माँ और पिता को बोल दिया कि इस बच्चे को ले जाओ और कहीं कारखाने में रख दो, उसको बोलो कि वहां पर कारखाने में मजदूरी कर दे। वो इसके 20 साल बाद वही बच्चा ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना, जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल। उनको पता नहीं था कि जिसको मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं वो एक दिन ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में 1945 के आसपास जब एडोल्फ हिटलर के सामने, तो इंग्लैंड के पास कुछ नहीं था, ब्रिटेन हैड नथिंग। उनके पास उतने विमान भी नहीं थे, उनकी मिसाइल भी नहीं थी, उनके पास इतने बारूद भी नहीं थी, उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं था उस वक्त, उस समय में। फिर भी उन्होंने ब्रिटेन को जीत दिलवाई। मतलब कि स्कूल में हम छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जाता। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स आज सुन रहे हैं, तो मैंने आइंस्टाइन की एक बात की, तो आइंस्टाइन की लाइफ की एक दूसरी भी बहुत सारी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइंस्टाइन ने E = mc², जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी का इन्वेंशन किया, वो पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध हो गए। लेकिन उनके जमाने में टेलीविजन नहीं था, उनका चेहरा से लोग नहीं जानते थे, उनके आवाज से लोग जानते थे कि भी ये उनको उनके नाम से जानते थे कि भी एक आइंस्टाइन नाम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। तो किसी एक और यूनिवर्सिटी में उनको, जैसे आपने मुझे बुलाया, ऐसे उन जमाने में मैं तो आइंस्टाइन के लेवल नहीं हूँ, आपने तो मुझे एक पत्रकार या जर्नलिस्ट के तौर पे बुलाया है। आइंस्टाइन तो बहुत बड़े आदमी थे, मैं तो उनकी कंपैरिजन में आई एम ए वेरी स्मॉल पर्सन। तो आइंस्टाइन को बुलाया गया, तो आइंस्टाइन काफी 100 किलोमीटर दूर जाना था, वहां पर जाके उनको एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना था। आइंस्टाइन गए तो उनका ड्राइवर ने देखा कि आज मेरे सर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। तो ड्राइवर ने पूछा आइंस्टाइन को कि सर, इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं आपकी जगह पे इफ आई डिलीवर अ लेक्चर, विल इट बी ऑलराइट? तो आइंस्टाइन बड़े हैरान हो गए कि आप तो ड्राइवर हो, यू आर अ ड्राइवर, और मुझे थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, मेरे सामने सब अध्यापक होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, और साइंस के बहुत बड़े जानकार लोग होंगे, हाउ यू आर गोइंग टू गिव लेक्चर अबाउट माय थियरी? तो ड्राइवर ने बोला कि सर, इट इज नॉट सो, आई हैव बीन अटेंडिंग ऑल योर लेक्चर्स, तो आई नो मैं बहुत कम पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो इफ यू परमिट मी, आप हॉल में सबसे आखिरी वाले सीट में बैठ जाइए और मैं लेक्चर दे दूंगा। तो आइंस्टाइन ने बोला चलो आज ये भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो लोग तो जानते नहीं थे कि ये ड्राइवर आइंस्टाइन है, या क्योंकि उन जमाने में उनको अखबारों में उनकी तस्वीर, और टेलीविजन भी तो नहीं था। तो क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी के हॉल में सब बच्चे बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, प्रोफेसर बैठे हुए थे, एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, और आइंस्टाइन ने ड्राइवर को इंट्रोड्यूस किया कि ये आइंस्टाइन है, मैं उनका ड्राइवर हूं। तो ड्राइवर को आइंस्टाइन समझ के वो हॉल में ले गए, उनको डायस पर बैठाया, और वो आइंस्टाइन खुद वो हॉल के आखिरी वाली सीट में जाके बैठ गए। आखिरी वाली सीट में बैठकर वो शांति से सुनने रहे। तो अभी क्या हुआ कि ड्राइवर ने, जो आइंस्टाइन की नाम से वो डिलीवर कर रहा था लेक्चर, उसका लेक्चर उसने पूरा दे दिया अच्छी तरह से, क्योंकि वो उनको पूरी थियरी का उनका पूरा पता था कि भाई थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। अभी ऑल ऑफ अ सडन उसमें अचानक एक क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ। अभी एक अध्यापक ने बहुत बड़ा डिफिकल्ट सवाल ड्राइवर को पूछा, आइंस्टाइन समझकर। अभी ड्राइवर को सिर्फ थियरी हो आगे पीछे वो कुछ नहीं जानता था। तो संत थे स्वामी रामतीर्थ। स्वामी बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 70 years ago। तो स्वामी रामतीर्थ जो गुजराती अच्छी जानते थे, हिंदी अच्छी जानते थे, संस्कृत भी अच्छी जानते थे, इंग्लिश भी अच्छी जानते थे, और साउथ की बहुत सारी भाषाएं जानते थे। तो उस जमाने में ही वॉज ट्रैवलिंग टू जापान। तो उन्होंने प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने ही वेंट देयर बाय शिप। तो एक बहुत बड़ी स्टीमर में ही वॉज ट्रैवलिंग। तो आप जानते हो कि दरिया में जब चलती है तो बहुत सारे लोग उसमें जब सुबह होती है तो डेक पर वो आते हैं, बैठते हैं। तो स्वामी रामतीर्थ ने देखा कि एक बहुत उम्र वाला, वेरी एजेड पर्सन,
वो स्टीमर के डेक पर बैठे बैठे कुछ लिख रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी, उसके हाथ में कुछ कागज थे, उसके हाथ में कुछ पेन था। वो लिख रहा था। लिखते लिखते उन्होंने देखा कि ही वॉज वेरी, मतलब कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा था। तो स्वामी रामतीर्थ उनके पास गए, यानी ही वॉज एन इंग्लिश पर्सन, जो आदमी जिसके हाथ में किताब थी और जो लिख रहा था। तो उन्होंने पूछा स्वामी रामतीर्थ ने कि सर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू रीडिंग एंड व्हाट आर यू डूइंग। तो वो बुजुर्ग ने कहा कि मैं चाइनीज भाषा सीख रहा हूं। तो स्वामी रामतीर्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दुनिया, उन्होंने बोला कि चाइनीज तो फिर उन्हें स्वामी रामतीर्थ ने पूछा कि सर व्हाट इज योर एज। तो वो अंग्रेज आदमी ने कहा कि माय एज इज 95। अभी स्वामी रामतीर्थ तो जानते थे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि सर एज फार एज आई नो, दुनिया में सबसे बड़े डिफिकल्ट लैंग्वेज तो चाइनीज है। अगर इफ यू आर अ नॉन चाइनीज तो इट विल टेक एटलीस्ट 17 years टू लर्न चाइनीज, जिसको वो मेंडेलियन कहते हैं। क्योंकि चाइनीज भाषा एक चित्रात्मक है। हमारी भाषा में ABCD है, क ख ग घ है, या अपने अल्फाबेट्स है। वहां पर अल्फाबेट नहीं है, वहां हर चीज के लिए एक ड्राइंग्स है। मान लो कि आपको कमल लिखना है तो आपको कमल दौड़ना पड़ेगा, आपको कार लिखनी है तो कार दौड़नी पड़ेगी, आपको चश्मे लिखना है तो चश्मा दौड़ना पड़ेगा। सो चाइनीज भाषा पे अपना प्रभुत्व खड़ा करने के लिए इट टेक्स एटलीस्ट 17 years। तो स्वामी रामतीर्थ ने पूछा कि सर आपकी यू आर 95 और आपको सीखने में दूसरे 17 साल 17 साल लग जाएंगे, तो ये भाषा आपको कब काम आएंगी। फिर वो इंग्लिश जेंटलमैन ने, हु वाज 95 years old, उन्होंने अपने चश्मे उतारा, बोला कि स्वामी जी वेयर आर यू फ्रॉम। तो स्वामी जी ने कहा कि सर आई एम फ्रॉम इंडिया। तो देखो, मुझे लगता है कि अगर आपकी यही सोच रही तो आपका देश जरूरत से ज्यादा पहले बूढ़ा हो जाएगा, बिकॉज लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स। मैं सीख रहा हूं, मैं युवा रहने के लिए। ये कब मैं चाइनीज सीखूंगा, कब मैं चाइना जाऊंगा, कब मैं चाइनीज भाषा बोलूंगा, मेरा हर दिन सुबह से शाम तक मैं कोई ना कोई एक नई चीज सीखता रहता हूँ। अगर हमारे स्टूडेंट्स आज हमारे जो सामने बैठे हुए हैं या अपने लैपटॉप पर या मोबाइल के स्क्रीन पर मुझे सुन रहे हैं, यार आपको सुन रहे हैं, अगर वो समझे कि चारों यूनिवर्सिटी से हमको एक डिग्री मिल गई और सब कुछ, चलो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो अभी हमने बहुत सीख लिया, इट इज नॉट सो। लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स। वो हमेशा चालू, हमेशा रहता ही है। इसके बारे में मुझे एक और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे मान लो आज आप है, मैं हूं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे सामने बैठे हैं, उनके पास ज्यादा में ज्यादा 1 डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री हो सकती है। लेकिन श्रीकांत जिचकर जो 1949 में पैदा हुए, उनके पास 42 यूनिवर्सिटीज की 22 डिग्रीज थी, 22 डिग्रीज। और मेरे पास उनकी डिग्री का लिस्ट है, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि 22 डिग्रीज में अब याद नहीं रखता। एक ऐसा आदमी था, कभी आपने ऐसा आदमी देखा है कि जो डॉक्टर भी हो, बैरिस्टर भी हो, IAS भी हो, IPS भी हो, फोटोग्राफर भी हो, MLA भी हो, मंत्री भी हो, कवि भी हो, जर्नलिस्ट भी हो, इतिहासकार भी हो, समाजशास्त्री भी हो, अर्थशास्त्री भी हो, कवि भी हो और फिलोसोफर भी हो। ये इसका नाम था श्रीकांत जिचकर। और वो जिचकर के पास जो डिग्री थी, उस डिग्री में आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां है। उन्होंने पहले MBBS किया, फिर MD किया, फिर LLB किया, फिर LLM किया, फिर MBA किया, फिर MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, फिर MA इन समाजशास्त्र में किया, MA इन अर्थशास्त्र में किया, MA इन संस्कृत में किया, MA इन इतिहास में किया, MA इन अंग्रेजी में किया, MA इन साहित्य में किया, MA इन फिलोसॉफी में किया, MA इन राजनीति शास्त्र में किया, और MA इन इंडियन पौराणिक इतिहास में किया, फिर आर्कोलॉजी में किया, MA इन साइकोलॉजी में किया, फिर संस्कृत में डिलीट किया, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। और भी मेरे पास लंबी यादी है। यही श्रीकांत जिचकर, जो नागपुर के पास एक छोटे से किटोला करके एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था, और ये सभी डिग्रियां उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं, पत्राचार से ली, और सभी में वो फर्स्ट क्लास रहे।
उसके बाद वो मंत्री बने। सिर्फ 26 साल की उम्र में महाराष्ट्र असेंबली के, आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्टूडेंट, कि जो बच्चे ने 42 यूनिवर्सिटी से 22 डिग्रियां हासिल की और 26 साल की उम्र में वो एमएलए बने। फिर महाराष्ट्र में वो मंत्री भी बने। मंत्री बनने के बाद उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो हिंदुस्तान का सबसे लर्नेड आदमी का नाम उनको दिया जाता है, जिनके पास सबसे ज्यादा ऑफिशियल डिग्रियां थी, फर्जी डिग्रियां नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट श्रीकांत जिचकर। फिर एक दफे वो बीमार पड़ गए, उनको मलेरिया हो गया, फिर और बीमार हो गए। Then he was taken to New York and he was admitted into the hospital where he was diagnosed of cancer. तो उनको कैंसर था। फिर डॉक्टरों ने उनको बताया कि मिस्टर श्रीकांत जिचकर, वी आर सॉरी टू से यू हैव ओनली 15 days टू लिव। 15 दिन के बाद आपकी आयुष लगती नहीं है। तो अभी उस वक्त में उनकी उम्र कितनी कम थी, ये वॉज 45 के आसपास के थे। तो एक सन्यासी न्यूयॉर्क की हॉस्पिटल में उनको मिलने आए। सन्यासी मतलब कि वो जादू मंत्र वाले सन्यासी नहीं थे, अंधश्रद्धा वाले सन्यासी नहीं थे। सन्यासी ने कहा कि, उनको देख के कहा कि मिस्टर जिचकर, यू आर नॉट गोइंग टू डाई विद इन 15 days, यू आर गोइंग टू लिव लॉन्गर। और मैं आपको एक काम बताता हूँ, आप कीजिए। और वो काम है कि आप संस्कृत पढ़िए और संस्कृत में आप बहुत सारी कोई डिग्री लीजिए। और कैंसर होने के बावजूद उन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। उसमें उन्होंने कैंसर होने के बाद संस्कृत में डिलीट हुए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का डिग्री हासिल किया और वो ठीक होकर फिर वापस आ गए। देन ही वाज अगेन एक्टिव। और फिर उन्होंने राजनीति छोड़कर वो कालिदास यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत वो महाराष्ट्र में स्थापित की और उसी यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर बने। प्रॉब्लम ये हुई कि उनकी मृत्यु कैंसर से नहीं हुई, उनकी मृत्यु बीमारी से नहीं हुई। वो नागपुर से अपने फार्म पर थे और नागपुर जा रहे थे, तो रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट हो गया और कार के एक्सीडेंट में उनका देहावसान हो गया। ये श्रीकांत जिचकर, ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ लर्नेड पर्सन, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं कि 42 यूनिवर्सिटी से 22 डिग्री हासिल करने वाला एक आदमी अगर पूरे विश्व में कहीं भी हो तो सिर्फ वो इंडियन था। उसका नाम श्रीकांत जिचकर। आप गूगल पे जाइए, उनके बारे में पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। मतलब कि यूनिवर्सिटी में जाओ या न जाओ, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, कैंसर हो या ना हो, एक आदमी कैंसर होने के बावजूद भी अगर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर संस्कृत में हो सकता है तो और कुछ ना कर क्या नहीं कर सकते। मैं आपको आज हमारे सामने सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं एक बात और भी कहूँगा कि डॉक्टर APJ कलाम जो हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद उनको भारत रत्न मिला। वो मिसाइल मैन के नाम से, रॉकेट मैन के नाम से भी जानते हैं और प्रेसिडेंट, पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाने हुए थे। वो एक दफा ही केम टू अहमदाबाद और वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में वो लेक्चर देने के लिए गए। तो कलाम साहब जब लेक्चर देते थे तो अपना प्रवचन खत्म करने के बाद वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक सवाल पूछते थे कि एक सवाल मैं आपको देता हूं, इसका जवाब मुझे अभी नहीं चाहिए, आपको घर पर जाके सोचना है। सवाल ये था कि दुनिया आपको किस बात के लिए याद रखे, वो पसंद करोगे आप रात को जाके घर पे जाइए, सोते पहले एक कागज और पेन लीजिए या लैपटॉप लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां जब आप हो या ना हो, आपको किस बात के लिए याद रखे। तो बहुत सारे स्टूडेंट थे और आप लिखो। कोई बच्चा ने सोचा कि भी आज हिंदुस्तान में ऊर्जा की कमी है तो हम ऐसा मैं काम करूं कि पूरे हिंदुस्तान की गांव तक बिजली पहुंच जाए। दूसरा आदमी ऐसा सोचेगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी बेकारी है तो बेकारी में ऐसी फैक्ट्रियां डालूंगा, ऐसा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऐसा बिजनेस करूंगा कि हजारों लोगों को नौकरी मिले। तीसरा आदमी सोचेगा कि मुझे हिंदुस्तान को अच्छे लॉयर्स की जरूरत है। चौथा बच्चा सोचेगा कि हिंदुस्तान को अच्छे पॉलिटिशियन की जरूरत है। पांचवा बच्चा सोचेगा कि हिंदुस्तान में अभी हॉस्पिटल तो कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट की जरूरत है। मतलब जो भी बच्चा जाता था वहां पर स्टूडेंट सुनता था। और APJ कलाम ने कहा कि आप जो भी लिखो वो मुझे लेटर से मेरे
मुझे राष्ट्रपति भवन में भेज दीजिए, और जिसका आंसर मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं मेरे अपने फोटोग्राफ पर ऑटोग्राफ करके भेजूंगा। वो जब भी जाते थे, जहां भी यूनिवर्सिटी में जाते थे, उनका ये सवाल हमेशा रहता था कि बच्चे घर पर जाए, स्टूडेंट्स घर पे जाए, घर पे जाके रात को सोचे कि मुझे आने वाली दुनिया, आने वाली पीढ़ियां किस नाम के लिए याद रखेगी। इससे ये बच्चों को और स्टूडेंट को, मैं यही सवाल आज अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि आप भी यही चीज हमेशा, कि आप रात को आज सोने के लिए जाओ तो आपको भी ये सोचना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको किस लिए याद रखें, और उसके मुताबिक अपना जीवन निश्चित करो। इसमें अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट में सुनने वाला एक सृजन पाल सिंह नाम का एक स्टूडेंट था। वो कुछ साल के बाद वो खुद अध्यापक बन गया। वो केरला गया, तो केरला की यूनिवर्सिटी में एपीजे कलाम फिर से आए। एपीजे कलाम साहब ने पूरा अपना लेक्चर खत्म कर दिया और फिर बच्चों को यही कहा कि आप घर पे जाओ, सोचो कि आने वाली पीढ़ियां आपको किस चीज के लिए, आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसके लोग को आप याद रखेंगे। तो फिर सृजन साहब पाल को ने सोचा कि मैं आज मुझे मिलना ही पड़ेगा कलाम साहब को। वो गए, कलाम साहब को मिले, नमस्ते किया। कलाम साहब ने को पूछा कि सर, आप तो हर यूनिवर्सिटी में ये सवाल पूछते हो, मैंने आपको अहमदाबाद में भी सुना था, लेकिन आज मैं आपको सवाल पूछता हूँ। सृजन पाल सिंह जो एक दफे स्टूडेंट था, अभी वो अध्यापक था, उसने कलाम साहब को बॉल उनकी कोर्ट में फेंका। सर, मैं आपको पूछता हूं कि आने वाली दुनिया, आने वाले हिंदुस्तान की पीढ़ी आपको किस चीज लिए याद रखे। आप मिसाइल मैन की तौर से याद रखे, रॉकेट मैन, साइंटिस्ट, भारत के पीपल्स प्रेसिडेंट या भारत रत्न, कौन सी चीज के लिए आने वाली पीढ़ी याद रखना आप पसंद करेंगे। तो कलाम साहब ने बहुत हंस के बोला, चलो इट्स गुड कि पहली बार किसी स्टूडेंट ने, अब जो अध्यापक है उसने मुझे सवाल पूछा है, तो आपने जितने भी मुझे विकल्प बताए वो विकल्प मुझे पसंद नहीं है कि मैं रॉकेट मैन था, मिसाइल मैन था, या साइंटिस्ट रहा, या मैं पीपल्स प्रेसिडेंट रहा, या मुझे भारत रत्न रहा, इसलिए लोग याद करें। मुझे एक शिक्षक के तौर पे, मुझे एक टीचर के तौर पे अगर लोग याद रखेंगे, आई बी वेरी हैप्पी। आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जब रहे तो अब्दुल कलाम साहब सबसे ज़्यादा स्कूल्स में गए, यूनिवर्सिटीज में गए, कॉलेज में गए, और बच्चों को अपने वहाँ पर जाके अपने राष्ट्रपति भवन में बुलाकर भी उनके साथ बात करते थे। ये अब्दुल कलाम। और डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हिंदुस्तान के बड़े, जो अहमदाबाद के रहने वाले थे, साराभाई फैमिली के संतान थे, और विक्रम साराभाई जो इंदिरा गांधी के समय में उनको भी न्यूक्लियर कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, और ही वाज अ वेरी ब्रेव साइंटिस्ट जिन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और इसरो वगैरह स्थापित किया। आज हिंदुस्तान का जो अवकाश विज्ञान है उनके पितामह तो डॉक्टर विक्रम साराभाई है। तो विक्रम साराभाई को मैंने पूछा था, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अहमदाबाद, ही वॉज अ साइंटिस्ट, और मैं उनकी बहन लीनाबेन मंगलदास की स्कूल श्रेयस में पढ़ा था। मैंने एक दफ़े डॉक्टर विक्रम साराभाई को पूछा कि विक्रम भाई, लोग आपको किस चीज़ लिए, आपको कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में छूट गई है कि आपने बहुत सारा किया। तो उन्होंने बोला कि मेरे ज़िंदगी में से एक बात छूट गई है कि मेरी ज़िंदगी की अंतिम भूमिका एक शिक्षक की हो, टीचर की हो। मैं टीचर बनना चाहता था, टीचर रहना चाहता था, बच्चों को सिखाना चाहता था। तो चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी की अंतिम भूमिका टीचर की हो। लेकिन आज आप सब मेरे सामने बैठे हुए, बहुत सारे अध्यापक भी है, भाई और बहन भी बैठे हुए हैं। तो टीचिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड नोबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, जैसे मेडिसिन, जैसे जर्नलिज्म और टीचिंग प्रोफेसर। ये पैसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज समाज के प्रति भी है। और एक साइंटिफिक अप्रोच की भी बात कर मैं इस वक्त कर लेता हूँ कि आज अंधश्रद्धा की दुनिया में पूरी चल रही है। तो यही भी डॉक्टर एपी के कलाम साहब की ज़िंदगी की बात है। जब सबसे हिंदुस्तान के पहली बार वो प्रेसिडेंट बने तो राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने उनको जाके पूछा कि सर, अब आप प्रेसिडेंट तो नियुक्त हो चुके हैं, आपको अभी शपथ लेनी है।
तो अगर आप किसी आस्था है आपकी कि इस तारीख को या तिथि को या इस मुहूर्त को इस समय में आपको शपथ लेना चाहते हैं, तो आप सोच के हमें बता दीजिए, तो आपकी नियत की हुई तारीख, डेट, टाइम और मुहूर्त पर हम आपकी शपथ विधि का अरेंजमेंट कर देंगे। तो डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने कहा कि देखो, जब तक आकाश में सूर्य प्रकाशित है और पृथ्वी अपने एक्सिस के आसपास घूम रही है, तब तक हमारे पृथ्वी की सभी घड़ियां, सभी मुहूर्त ठीक है। जिस दिन सूरज प्रकाश देना बंद कर देगा और हमारी धरती, हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर देंगी, तो उस दिन इस पृथ्वी के सभी मुहूर्त अशुभ होंगे, हम जिंदा ही नहीं होंगे। दिस वॉज अ अप्रोच ऑफ अ साइंटिस्ट, दिस वॉज द अप्रोच ऑफ अ टीचर। आज अंधश्रद्धा का युग है, लोग कोरोना से बीमार है तो लोग कहते हैं कि ये करो वो करो, आप कोरोना खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये एक साइंटिफिक समस्या है, और वही जो हमारे जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं इनके लिए ये बहुत बड़ा लेसन है कि आप धर्म में आस्था जरूर रखिए। धर्म सबसे बड़ी चीज़ है, धर्म हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं। लेकिन एक बात आज हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो एक अंतिम बात मैं आपको करना चाहता हूँ बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहेंगे, पढ़ने के बाद बहुत सारा करेंगे, लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी है, वो बात है एक में रोमानिया, यूरोप में रोमानिया करके एक छोटा सा कंट्री है। रोमानिया की एक फैक्चुअल स्टोरी आपको सुनाता हूँ। रोमानिया में एक छोटा सा गांव था, छोटे से गांव में कुछ लोग रहते थे और वहाँ पर सब अपने मकान में रहते थे। वहाँ पर एक देयर वाज अ स्मॉल स्कूल। तो इसमें रोमानिया में एक एडवर्ड फ्रिच करके एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसका पिता नहीं था। माँ अपने बच्चे को संभालती थी और माँ अपने बच्चे को स्कूल में भेजती थी, स्कूल तक छोड़ने के लिए जाती थी। लेकिन एडवर्ड फ्रिच छोटा सा, बहुत छोटा सा उसकी उम्र थी, तो स्कूल में वो जब जाते थे, लेके जाती थी, तो बहुत सारे बच्चे एडवर्ड फ्रिच की माँ को देखकर डर जाते थे। प्रॉब्लम ये था कि एडवर्ड फ्रिच की माँ की एक आंख नहीं थी। सब बच्चे कहते थे कि तुम्हारी माँ के लेके मत आओ, तुम्हारी माँ अगली है, उसकी एक आंख नहीं है, डरावनी लगती है। तो वो एडवर्ड फ्रिच तो छोटा सा बच्चा था, उसको पता नहीं था कि लोग कुछ भी कहे, लेकिन माँ तो माँ है। हाँ, उसकी एक आंख ही नहीं थी, पूरा एक होल ही था बस, और एक ही आंख थी। तो उसने अपनी माँ को बोल दिया कि माँ मुझे डोंट कम टू माई स्कूल, मेरे सब बच्चे, मेरे जो स्टूडेंट्स है वो मुझे चिढ़ाते हैं कि योर मदर इज ओनली वन आई, और मुझे चिढ़ाते है आई डोंट लाइक यू टू, मुझे तुम भी पसंद नहीं हो। तो माँ को बहुत बुरा लगा कि ये मेरा बेटा मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन माँ शांत रही, कोई बात नहीं। कुछ साल के बाद यही एडवर्ड फ्रिच रोमानिया छोड़ के पेरिस चला गया, फ्रांस पढ़ने के लिए चला गया। पेरिस जाने के बाद ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो पेरिस में वो हाई स्कूल का पढ़ा, फिर कॉलेज में पढ़ा, देन ही बिकेम ए वेरी बिग सेलिब्रिटी। तो वहीं पर उसने शादी कर ली, एक फ्रेंच लेडी के साथ उसने शादी कर ली, और उसने अपनी माँ के साथ का पूरा रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उसके माँ एक आंख उसकी नहीं थी, शी वॉज अगली लुकिंग, ऐसा उसको लगता था। तो वो बहुत साल तक न तो वो अपने रोमानिया, अपने गांव गया, या न तो उसने अपनी माँ को बुलाया। सिर्फ खत उसके पास, दोनों के पास एक दूसरे के पोस्टल एड्रेस थे, क्योंकि वो तो उसके गांव का तो एड्रेस था, लेकिन उसके साथ साथ उसकी माँ को भी कभी कभी वो लेटर लिखते थे अपने बेटे को, क्योंकि उसके पास भी उसका एड्रेस था। तो शादी कर ली, उसके बाद बहुत 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 बड़ा सेलिब्रिटी हो गया। एक दिन उसकी माँ जब बहुत बूढ़ी हो गई, तो उसी माँ को लगा कि चलो मैं एक बार मेरे बेटे का मुंह देखा हो और मुझे मेरे बेटे को एक सरप्राइज देनी है। तो एडवर्ड फ्रिच की माँ बिना बताए एक बस में बैठकर वो पेरिस पहुंच गई। उसके पास तो पोस्टल एड्रेस था ही था। वो सीधा घर पे जाके उसने घर पे नॉक किया, तो छोटे छोटे दो बच्चों ने वो डोर खोला। डोर खोला तो वही चीज सामने आई, तो बच्चे डर गए। तो उन्होंने बोला
कि डैड कोई अगली लुकिंग लेडी अपने घर पे आई है एंड वी आर फ्राइटन। तो एडवर्ड फ्रिच और उसकी वाइफ बाहर आई, उन्होंने देखा कि ये तो एडवर्ड फ्रिच की माँ है। तो एडवर्ड फ्रिच को भी अच्छा नहीं लगा, उसने भी अपनी माँ को डांट दिया कि मदर, व्हाट काइंड ऑफ मदर यू आर, आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर आने से पहले मुझे बताना चाहिए था कि यू आर कमिंग, और आपने मुझे बताया नहीं, और मेरे बच्चे डर गए, कैसे अगली लगती हो, एक तुम्हारी आंख भी नहीं है, बताओ। माँ बेचारी चुप हो गई, शांत हो गई। वो तो रहने के लिए आई थी 10-15 दिन, लेकिन उसको को लगा कि मुझे यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे को देखना है। मैंने बेटा देख लिया। वो दूसरे दिन चुपचाप सबकी मिलके वो फिर बस पकड़ के फिर वो रोमानिया चली गई। ये बात को भी कुछ साल बीत गए। इसके कुछ 4-5 साल बाद ये और बड़ा सेलिब्रिटी हो गया एडवर्ड फ्रिच, पूरे फ्रांस में बहुत बड़ा पॉपुलर हो गया। तो एडवर्ड फ्रिच रोमानिया में जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल वाले ने सोचा कि हमारे स्कूल का एक विद्यार्थी बड़ा होकर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी फ्रांस में हो गया है, तो उसको रोमानिया बुलाना चाहिए और उसको रोमानिया बुला के हमारे स्कूल में उसका सम्मान करना चाहिए। देन दे रोट अ लेटर टू हिम। तो एडवर्ड फ्रिच को लेटर मिला कि भाई ये तो मुझे बुला रहे हैं और दिस इज वेरी गुड। तो सम्मान किसको पसंद नहीं है। तो वो फिर अपने गांव गया, सीधा स्कूल में गया, अपने घर नहीं गया। स्कूल में जाके उसने एक बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया कि आपको बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे मेहनत करने के वगैरह वगैरह। लेक्चर खत्म हो गया, उसका बहुत बड़ा सम्मान हुआ, उसको मान पत्र भी दिया गया, फूल के बुकेस भी दिए गए, बहुत सारे लोगों ने उसको बधाई दी, वहां पर लंच भी हुआ। फिर वो जैसे स्कूल में से बाहर निकला, उसको लगा कि आज मैं यहाँ तक आया हूँ तो चलो आई मस्ट गो टू माई मदर। तो उसको तो याद आ गई कि भी चलो मुझे मेरी माँ को मिलना चाहिए। हो गया। अब वो अपने घर पे, तो अपना घर तो वो जानता ही था क्योंकि इट वाज स्मॉल टाउन भी नहीं था, छोटा सा विलेज था। तो उसने जाके देखा कि अपना घर तो बंद था, बाहर से लॉक था, घर तो बंद था। तो उसने नेक्स्ट डोर दूसरा जो बाजू वाला मकान था उसको नॉक किया। वहां से एक वही वैसी उसकी माँ जैसी उम्र की एक महिला बाहर आई और एडवर्ड फ्रिच ने पूछा कि ये बाजू में रहती थी वो लेडी कहाँ है। तो बोला उनका तो 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया, अभी तो शीज इन ग्रेव, वो तो अभी कब्रिस्तान में कब्र में है। तो फिर वो महिला ने पूछा हु आर यू, मुझे मैंने आपको दिखा हुआ लगता है, आर यू एडवर्ड फ्रिच। तो एडवर्ड फ्रिच ने कहा हाँ कि मैं एडवर्ड फ्रिच हूँ और मैं यही महिला का, ये जो बाजू में रहती थी वो मेरा ही घर था, वो मेरी ही माँ थी। तो बाजू वाली महिला ने कहा कि मिस्टर फ्रिच आई एम वेरी सॉरी कि अभी तो आपकी माँ नहीं रही, लेकिन आपकी माँ ने मुझे एक खत लिखा है, आपके लिए एक पत्र लिखा था, मुझे दिया है। आपकी माँ ने कहा कि अगर मेरे बेटे को अपनी माँ याद आ जाए और मुझे ढूंढते ढूंढते अगर मेरे घर पे आ जाए तो ये खत आप मेरे बेटे को दे देना। वो अंदर घर में गई, अंदर जाके वो एक बंद कवर लेके आई, वो कवर खोला एडवर्ड फ्रिच ने। वो लेटर में उसकी माँ का लिखा हुआ एड्रेस टू एडवर्ड फ्रिच कि बेटा एडवर्ड, मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर मुझे ढूंढते ढूंढते घर पे आओगे, लेकिन एक बात मैंने जिंदगी भर आपसे, मेरे बेटे से छुपाई कि बेटा जब तू छोटा था ना तो हमारे गांव में तूफान मस्ती करते करते तू गिर गया था, तेरे आंख में एक पत्थर लग गया था, तेरी एक आंख चली गई थी, तू बहुत छोटा था, मैं तुझे बहुत अच्छी हॉस्पिटल में ले गई और डॉक्टरों ने कहा कि इस बेटे की एक आंख चली गई है, अगर कोई दूसरी व्यक्ति अगर अपनी आंख देती है तो ये बच्चा की इसमें हम आंख डाल देंगे और बड़ा होने के बाद दोनों आंखों से देखेगा। बेटा तेरे लिए मैंने एक मेरी ही आंख निकाल के तुम्हें दे दी है, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरी भी आंख से तू दुनिया देख रहा है, योर मॉम। पत्र यहाँ पर खत्म होता है। स्टूडेंट्स को मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपके माता और पिता ने आपके लिए क्या काम किया है, कितना सैक्रिफाइस दिया, वो सब बताते नहीं है,
एडवर्ड फ्रिज की माँ ने कभी नहीं बताया कि मेरी एक आंख नहीं है, क्योंकि मेरी आंख निकाल के, मेरी आंख ट्रांसप्लांट करके मैंने तुम्हें दी है। माँ ने कभी नहीं बताया। लेकिन एडवर्ड फ्रिज को जब ये पता चला, इट वॉज क्वाइट लेट। मेरे ख्याल से इसी संदेश के साथ कि आप अच्छा पढ़े, स्कूल में पढ़े, स्कूल के बाहर भी पढ़े, हर उम्र तक पढ़े। आपको एक चारूसेट यूनिवर्सिटी जैसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मिली है, बहुत बड़ा एनवायरनमेंट मिला है। देवांग सर और आपके जितने भी और बहुत बड़े बड़े विद्वान जो पढ़ाने वाले प्रिंसिपल्स एंड जो स्टाफ है, वो सबको मैं सम्मान करता हूँ। आप भी उनका सम्मान कीजिए, और आप आपकी संस्था में भी पढ़िए और बाहर भी पढ़िए, क्योंकि संस्था जो पढ़ाती है उसके साथ एनवायरनमेंट भी हमको बहुत पढ़ाता है। मेरे ख्याल से आज इस देश को आफ्टर कोरोना, हमारे दुनिया की और हमारे देश की जो इकोनॉमिक में बहुत सारी तकलीफें आई है, तो आपको अभी इस देश को कैसे खड़ा करना है, हमें कैसा आत्मनिर्भर बनाना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल। आज चाइना इस पूरी दुनिया में हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो 5.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं, और हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरी एक अपील है कि आप, जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि भी आप सोचो दुनिया क्यों याद करेगी, आज आप रात को जाके, मैं तो सीधा आपको बताता हूँ कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको क्या करना है। आपको ऊर्जा के क्षेत्र में क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में क्या करना है, एजुकेशन के फील्ड में क्या करना है, मेडिसिन के फील्ड में क्या करना है, नर्सिंग के फील्ड में क्या करना है, राजनीति के क्षेत्र में क्या करना है, और गरीबी को हटाने के लिए हमें क्या करना है, और हमें किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। इसके लिए आपको क्या करना है, आज रात को सिर्फ आपको ये सोचना है और आपकी डायरी में ये नोट करना है कि हम फिर से आत्मनिर्भर बने, और उसके लिए आप अपने उपाय सोचें और आप ऐसा कंट्रीब्यूशन करें कि आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करें। थैंक यू वेरी मच देवांग सर, धवल भाई, सुरेंद्र काका, आप सबका मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।